Guys, this is the second lectures. In last class we have seen the in last class we have seen the sources of Mauryan history, literary sources, archaeological sources. Let's go through these ones. In ancient India, we have studied about Mauryan Empire, the period between 387 BC to 187 BC, and how will we study about the Mauryan Empire. So there comes the requirement of sources. In sources, we have studied about literary sources, which include Arthashastra Parsisti Parvan by Hemchandra Suri, Mudrakshas by Vishak Dutt, Mahavansh, a Buddhist version of Chanakya, Chandragupta legend, etc. In later text, we have studied some more books: Mahabhas, Deepvans, Ashokvadna, Divyadan, Nitishar, Das Kumar Charitra Dandin, Mudrakshas, Kadambari, Indica, etc. Now, what is the importance of these literary sources? These literary sources gives us the varied information which requires to know about the society, economy, of, and the other cultural parts of the modern times. How the religious growth happened, how the Magadha Empire or the Mauryan Empire expand that much. Let's understand in later parts. Now comes the archaeological sources. We are just revising, not going into the much details. In archaeological sources, we have studied about 14 major rock edicts. Then after 6 pillar 1 rock edict. In 14 major rock edicts, the important sites are Kandhar, Shahbazgari, Mansehra, Girnar, Bombay Sopara, Dhauli, Jagora, Yeraguri, Sanati, Karnataka. These are the important sites which forms the different exams questions. In UPSC, you can get the questions like Sanati, Yeraguri, and there will be the match the column opportunity. And this is the fine opportunity where you can hit the hard and get the maximum out of it. And in six major rock edict, we have studied also about Gandhar. Gandhar is not only a 14 major rock edict. We have seen here only rock edict 12 and 13 has been the part of 14 major rock edict, but another rock edict like rock edict 7 or pillar edict 7 is part of 6 and 1 case 7 pillar edict. And I have told you that there may be the questions formed like Delhi Topra pillar edict or Delhi Merit pillar edict. Which part means form which of the following, like 14 major rock edict, 6 pillar edict, etc. So you will hit or you will take the 6 pillar edict. Loria Araraj, Loria Nandangar, Rampurva. These are the important sites in Bihar. And Bihar, why Bihar sites is important? Because these are the center of the cultural as well as administrative hub of the Mauryan Empire. And minor rock edict. In minor rock edict, I have mentioned some of the important minor rock edict, that is Bahapur, Srinivasapur in Delhi, Bairat, Bhabru Bairat, where Ashoka adopted Buddhism. This has been mentioned. Arhora in Mirzapur, UP, Sasaram, Gujjar, Rupnath, Penguria, Maski, Gavimat, Karnataka, Palikagundu, Nettur, Udgolanam, Rajula, Yeraguri, Brahmagiri, Siddhapur, Jatinga. These are the important sites which can be asked in examination for match the column.
Again, we have studied also about archaeological numismatics, punch-marked coins. Some of the important punch-marked coin of the Mauryan periods are panas and muskas. Panas are silver coin and musaks are the copper. And many archaeological sites are also present in the Mauryan dynasty. And in Kumrar, about Kumrar, I want to say something. I have visited this place, Kumrar, and this is the like a park. You will get 15, 25 rupees ticket. You can visit the site. You can see. आप जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे शिला हैं जहाँ पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेटर्स, वहाँ पे जो मंत्रीगण थे, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज थी वहाँ की, तो वो सब बैठ के वहाँ पे मीटिंग करते थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग होते थे, मीटिंग हॉल्स होते थे जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते थे। और वहाँ पे आपको पिलर्स भी दिख जाएंगे, जो वुडन पिलर्स हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द म्यूजियम, बट उसकी तस्वीर अभी भी लगी हुई है। और अभी भी उन उस प्लेस की खुदाई चली रही है। एंड कुछ ही दिन पहले खुदाई में जब मैं विजिट कर रहा था उस प्लेस को, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी, स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट हैड इंडल्ज इन डिगिंग द साइट्स। तो वहाँ पे एकदम फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता है, ना ही किसी को पत्रकारों को अलाउ किया जा रहा था। तो मैंने जब फोटो लेने का कोशिश किया तो दे आस्क नॉट टू टेक और डिलीट इफ एनी फोटो हैव बीन टेकन। तो इस केसेस में हम लोग जब देखते हैं तो दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट्स वेयर बहुत सारे जेम्स आपको मिल जाएंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, किंग थे उस टाइम के, उसके बारे में पढ़ते हैं। मौर्यन डायनेस्टी में सबसे पहला रूलर चंद्रगुप्त था, जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य की सहायता से गद्दी पे बैठे थे, और इन्होंने अपने रूल को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करा, गुजरात में भी एक्सटेंड करा। एंड इनका अभी हम कुछ ही देर में डिफरेंट प्रूफ देखेंगे कैसे ये चीज़ें एक्सटेंड हुई। तो यहाँ पे फैक्ट्स देखते हैं, कुछ फैक्ट्स जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दिव्यदान, दिग्गज निकाय, महावंश जो है, तो ये मौर्यस को डिस्क्राइब करते हैं कि ये दे बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन, एंड उनको मौर्य कहा गया है, हु रूल्ड पीपल वन। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से टेक्स्ट, विच ऑफ द टेक्स्ट फॉलोइंग टेक्स्ट called Maurya as a part of Kshatriya clan and referred to them as Mauryas। तो वहाँ पे दिग्ग निकाय, महावंश और दिव्यदान ये आएगा। इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तीनों को आप लोग टिक करें। अगेन सेकंड फैक्ट है कि परसिस्टी फॉरवन जो है चंद्रगुप्त को एक डॉटर ऑफ पीकॉक फार्मर बताते हैं, जो मोर को पालते थे, जो पीकॉक होते थे उनको पालते थे, जिसकी वजह से पीकॉक को हिंदी में मौर्य बोला जाता है, इसलिए उसका नाम मौर्य पड़ गया, चंद्रगुप्त मौर्य। सिमिलरली मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्ता को लो सोशल ओरिजिन का बताते हैं। तो मैंने जितने भी टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट पहले बताया, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिए, कौन कौन टेक्स्ट क्या बोल रहा है उसको आपको जस्ट याद रखना है। यदि एग्जाम में कुछ भी चीज़ रेफर किया जाता है तो आप कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं, और कुछ ना कुछ लगा के, ट्रिक लगा के आप सही कर सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस ट्रिक्स एंड these facts, slowly and slowly digest it and use it in the examinations, और जो भी मॉक टेस्ट सीरीज आएंगे उसमें आप यूज करें। द अर्ली मेडावल राइटर क्षेमेंद्र एंड सोमदेव कॉल हिम द पूर्वनंदा सुत्ता। क्षेमेंद्र और सोमदेव जो है उसको पूर्वनंदा सुत, सन ऑफ जेन्युइन नंदा बोलते हैं। क्षेमेंद्र
तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस राइटर्स के अनुसार मौर्य जो थे सन ऑफ नंदास कहलाते थे। इसमें क्षेमेंद्र और सोमदेव ये मेडावेल राइटर्स हैं। धुंडीराज, अगेन थर्ड फैक्ट है कि धुंडीराज एक कमेंटेटर हुआ करते थे जो कि बहुत सारे टेक्स्ट जैसे विष्णु पुराण हो गया एंड अनदर टेक्स्ट इन पे अपनी कमेंट्रीज लिखा करते थे। उन्होंने मौर्यस को बोला कि ये सन है नंदा किंग के, जो सर्व सर्वार्थ सिद्धि जो किंग थे नंदा किंग उनके सन है। बाय मुरा एक डॉटर ऑफ वृषाला हंटर थी, उनके किंग उनके बेटे हैं। तो चंद्रगुप्त को कहाँ से क्या ओरिजिन है, तो डिफरेंट बुक्स डिफरेंट चीज रेफर कर रही है। तो एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त अबाउट द चंद्रगुप्त ओरिजिन, और डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के बारे में दे देंगे, ये बुक इससे रेफर करता है। सम सिचुएशंस चेंज करके इनका स्वैप कर देंगे, धुंडीराज वाला चीज दे देंगे मुद्रा राक्षस में एंड मुद्रा राक्षस वाला चीज देंगे धुंडीराज राज में। तो ये चीजें याद रखिएगा। मिलिंद पन्हा के अनुसार चंद्रगुप्ता ने नंदा किंग को ओवरथ्रोन किया था तक्षशिला से विद द हेल्प ऑफ, तक्षशिला नहीं मगध से, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण चाणक्य जिसका नाम था। तो ये 4 टेक्स्ट हो गए, फैक्ट्स हो गए। और जब हम फॉरेन टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें मैसिडोनियन टेक्स्ट का भी जिक्र आता है, जहाँ पे अलेक्जेंडर चंद्रगुप्ता के समय अटैक करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्ता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसी चीज को आगे मेंशन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जब मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ तो इसमें क्या है कि चंद्रगुप्ता और मौर्य के ओरिजिन के बारे में है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कुछ फैक्ट्स जो कि फॉरेन से रिलेटेड है, जैसे चंद्रगुप्ता ऑब्टेन्ड द टेरिटरी ऑफ अर्कोशिया। अर्कोशिया कहाँ पे है, आप ये दे देगा अर्कोशिया, गेटोरेशिया, परो पोमिशादी। तो अर्कोशिया कांधार रीजन ऑफ अफगानिस्तान है, गेटोरेशिया बलूचिस्तान है, पेरोपोमसीदादी अफगानिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच का पार्ट है। अगेन नेक्स्ट हम देखते हैं कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस का क्या रोल है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने सुदर्शन लेक को बनवाया था, और उसी सुदर्शन लेक को पहले अशोका ने रेजुविनेट करवाया, फिर रुद्रदामन ने रेजुविनेट करवाया। एंड ये सुदर्शन लेक किसके टाइम पे, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके टाइम पे बना था, तो चंद्रगुप्ता के टाइम पे बना था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना था। तो रिनोवेट कौन कौन करवाए, एक अशोका करवाए थे, दूसरा रुद्रदामन करवाए थे। अब बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ लिए, अब साउथ इंडिया का टेक्स्ट अभी तक रेफर नहीं हुआ है। तो बोला जाता है कि अकानारू जो पोएम है, आपको पता ही है अकम और पुरम 2 टाइप के पोएम्स हैं, टेक्स्ट हैं साउथ में। तो अकानारू जो है कंपोज्ड बाय संगम पोएट ममूलनार। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन गए। अकानारू जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया, ममूलनार के द्वारा। तो इन्होंने बताया कि कोसर रीजन जो कि साउथ कर्नाटका में है, अगेन दिस फॉर्म्स द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि साउथ कर्नाटका में जो कोसर रीजन है उस पे भी मौर्यस का रूल था। यह टेक्स्ट और भी वेरीफाई होता है जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्ता और भद्रबाहु
जो श्रवणबेल गोला की तरफ अग्रसर हुए थे, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा डेथ बाय स्टारवेशन अपने लाइफ को त्यागा था। अगेन लेटर टेक्स्ट में बृहद कथा कोश ऑफ हरिसेन जो है ये स्टोरी नरेट करते हैं। राजवल्ली कथा इंस्क्रिप्शंस इन श्रवणबेल गोला हिल्स मेंशन अ पर्सन नेम्ड चंद्रगुप्ता एंड भद्रबाहु। राजवल्ली काथे इंस्क्रिप्शंस को आप लोग बहुत ही ध्यान से रखिएगा, जो कि मेंशन करता है चंद्रगुप्ता एंड भद्रबाहु के बारे में। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस है उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्ता का रूल सौराष्ट्र में भी था। चंद्रगुप्ता के बाद दूसरे किंग्स आते हैं, उनमें से एक था उनके पुत्र सुपुत्र बिंदुसार। बोला जाता है कि चंद्रगुप्त जो थे अपने पुत्र सिंहासन को गद्दी देना चाहते थे, बट बिंदुसार इसके फेवर में नहीं थे। अगेन चंद्रगुप्ता के सक्सेसर को अमित घाटा बोला जाता है, बिंदुसार को अमित घाटा बोला जाता है। और इनकी एक फेमस स्टोरी है कि इन्होंने जो अमित घाटा इसलिए बोला जाता है कि एक ग्रीक अकाउंट्स में इनको अमित्रोचैट्स के नाम से मेंशन किया जाता है। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, देयर इज अ स्टोरी दैट बिंदुसार रिक्वेस्टेड द एंटियोकस टू बाय एंड सेंड हिम सम स्वीट वाइन, ड्राइड figs and sophist, philosopher who specialized in philosophical debate argumentations. Antiochus is supposed to have replied, while he would certainly send the wine and fig, Greek laws didn't permit a sophist to be bought. तो कहानी इस प्रकार है कि बिंदुसार जब एंटियोकस को बहुत सारे फिक्स और वाइन्स भेजते हैं और गिफ्ट के रूप में, और बोलते हैं कि अपने फिलोसोफर और जो भी इनके जो स्कॉलर्स हैं उनको आप दें, तो एंटियोकस जो है रिस्पेक्टफुली एंड ग्रेसफुली मना कर देते हैं चीज़ों को, कि ग्रीक लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता है कि फिलोसफर्स को बेचा जाए। तो बिंदुसार भी ग्रेसफुली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिंदुसार की डेथ 273 बीसी में हुई। वो रेगुलर कन्फ्लिक्ट में थे। और अगेन बिंदुसार का सन सुषुम्ना, बिंदुसार फेवर कर रहे थे कि सुषुम्ना को गद्दी मिल जाए, बट अशोका को सपोर्ट किया उसके फादर्स के मिनिस्टर्स। नेम क्या था उनका? राधागुप्त। अच्छे से याद रखिएगा ये चीज़ों को, राधागुप्त। दीपवंश एंड महावंश रेफर टू अशोकाज किलिंग ऑफ। कौन कौन से टेक्स्ट रेफर करते हैं कि अशोका ने 99 ब्रदर्स को मारा और एक को छोड़ दिया, और जो छोड़ा उनका नाम क्या था? तिस। ये फोर्थ नंबर पॉइंट पे आप देखिए। सॉरी आई फॉरगॉट टू हाईलाइट दिस टेक्स्ट। और आगे देखते हैं, अशोक वदना के बारे में बताते हैं। अशोक वदना एक टेक्स्ट है जो अशोका के मदर के बारे में बताते हैं कि अशोका's मदर वाज a queen named शुभा दरंगी, द डॉटर ऑफ ब्राह्मण ब्राह्मण चंपा ऑफ चंपा। चंपा जो भागलपुर मुंगेर वाला रीजन से, उन उस रीजन में, जैसे कि मैं भी उसी रीजन से आता हूँ, चंपा रीजन से, भागलपुर मुंगेर उसी का पार्ट खगड़िया भी था, तो दैट उसी का पार्ट मतलब मुंगेर रीजन भागलपुर रीजन। आई एम नॉट द पार्ट एग्जैक्टली, नॉट द पार्ट, बट वही रीजन है, बांका मुंगेर बेगूसराय, ये
जो बिहार में ये रीजन्स हैं उन्हीं का पार्ट है, चंपा रीजन। तो चंपा रीजन से ही अशोक की माता शोभादरंगी आती है। तो जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि टिपिकल टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, टफ टफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को टफ बनाना होगा, तो वन लाइनर क्वेश्चन को टफ बनाना होगा। तो अशोका की माता का नाम क्या था? शोभादरंगी। किसके अनुसार था? तो अशोक वदना टेक्स्ट के अनुसार। और वहाँ हम लोगों ने और भी टेक्स्ट पढ़े थे, जैसे कि वामा सत्था पाक पकासिनी कॉल हर धर्मा ड्यूरिंग हिज फादर अशोका was stationed as the governor of उज्जैनी। जब अशोका के पिताजी बिंदुसार रूल कर रहे थे तो अशोका कहाँ का गवर्नर था? तो उज्जैनी का गवर्नर था। उसके पहले उन्होंने तक्षशिला को छोड़ा था। दीप वंश और महावंश बताते हैं अशोका की लव स्टोरी किसके साथ? तो देवी के साथ, जिनसे उनके दो पुत्र थे। दो नहीं, एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसको अशोक महेंद्रा और संघमित्रा बोलते थे। तो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया बुद्धिज्म को श्रीलंका में फैलाने के लिए। अशोक की अन्य रानियां भी थी, जैसे कि अशांतिमिता, तिशार रक्षिता, पद्मावती। क्वेश्चन पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है तो करुवाकी के बारे में भी बताते हैं। अशोक वदना इज अ पार्ट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ लेजेंड इन दिव्यदान। तो अब यहाँ से पता क्या चलता है कि अशोक वदना किसका पार्ट है? दिव्यदान का पार्ट। तो अशोक वदना में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टोरीज दिए गए हैं, अशोकास के प्रीवियस बर्थ के बारे में, अशोकास के बारे में भी स्टोरी दिए गए हैं। जैसे कि एक स्टोरी है कि अशोका पहले जन्म में एक लड़का था जिसका नाम जय था। वो बॉल लेके खेल रहा था, बॉल में कटोरा लेके रोड पे खेल रहा था। नहीं, सॉरी, ये स्टोरी इस प्रकार है कि अशोका पहले जन्म में, पिछले जन्म में जय नाम का लड़का था, और बुद्ध जो भिक्षा मांगते हुए आए तो उनके पास तो कुछ था नहीं अशोक के पास। तो इन्होंने बुद्धा के जो बॉल है, भिक्षा पात्र जिसको बोलते हैं, उसमें मिट्टी डाल दिया। तो जब मिट्टी डाला तो बुद्धा ने बोला कि आप कोई विश मांगो या फिर कुछ एकदम कुछ अच्छा गिफ्ट मांगिए। तो उन्होंने बुद्ध उस बालक जय ने बोला कि मैं एक राजा बनूं और बुद्ध के अनुयायी बनूं। तो बुद्ध ने उनके गिफ्ट को देखकर, जो डर्ट रूपी मिट्टी रूपी गिफ्ट था, उनको देखकर मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वही बॉय 100 साल बाद अशोक के रूप में जन्म लिया। अगेन दूसरी स्टोरी ये है कि बिंदुसार जो थे, अशोक बदना का ही स्टोरी है कि बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को लाइक नहीं करते थे क्योंकि उनका अपीयरेंस अगली था। तो जिस वजह से वो उसे किंग भी नहीं बनाना चाहते थे। जिसके वजह से अशोका बहुत ही हाई टेम्पर और बदमाश नेचर का हो गया था। तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उस टाइम के, और उनके ब्रदर्स थे, उनको मारा और फिर उन्होंने गद्दी हासिल की।
अशोकवदना जो है बुद्धा के लास्ट टाइम के भी बारे में बताते हैं कि बुद्धा कैसे स्टार्ट करता था दिन का, कि अशोका जो थे बहुत सारे गिफ्ट देते थे अपने संघ में, बहुत सारे गिफ्ट दिए। इन्होंने इंटायर ट्रेजरी को एम्प्टी कर दिया था गिफ्ट देते देते। अशोकास और दिस कुड बी द वेरी रीजन दैट कि अशोका के बाद का टाइम जो था उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा एज ए मगध एम्पायर के बारे में जब हम सोचते हैं, द ग्रेट मगध एम्पायर के बारे में जब सोचते हैं। एंड सम आगे हम कुछ इंस्क्रिप्शन जैसे कि कंगन हाली इंस्क्रिप्शंस, वहाँ पे रानी अशोका के रूप में इसे संबोधित किया गया है। और कंगन हाली इंस्क्रिप्शन को किसने खोजा है? केपी पुनाचा। सतवाहना किंग के लीड कॉइन भी मिले यहाँ पे। मैक्सिमम लीड कॉइन कौन से रूलर यूज करते थे? सतवाहना किंग। द कंगन हाली इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है कि मैक्सिमम एरिया पे अशोका ने रूल किया एक्सेप्ट द साउथर्न पार्ट, जहाँ पे कि केरला पुत्र और सतिया पुत्र राज करते थे। और अशोकास की पॉलिसीज जैसे कि नॉन वायलेंस वगैरह, इसकी वजह से फाइनली एंड हो गया अशोकास के रूलर। अशोका एज ए रूलर एंड तो हुआ ही, साथ ही साथ मौर्यन एम्पायर का एंड हो गया। उनके लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, जो कि मार दिया गया किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा इन 187 BC। तो ये है कि मौर्यन एम्पायर का एंड। आगे तो ये थी पूरी कहानी, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि सिटीज का क्या ग्रोथ था, वहाँ के विलेज का क्या ग्रोथ था, क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे, जो पब्लिक ऑफिशियल्स थे उनको किस नाम से जाना जाता था, उनका वर्क क्या था, उनका फंक्शंस क्या था, और मौर्यास के टाइम पे रिलीजियस ग्रोथ क्या था, साइंटिफिक ग्रोथ क्या था, आर्किटेक्चरल ग्रोथ क्या था। तो उन सारी चीज़ों को अगले लेक्चर्स में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत ही धन्यवाद। आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से जहाँ जहाँ पे कमी हो रही है वो आप बताएं कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही करा है। बट धीरे धीरे मैं इन सारी समस्याओं को धीरे धीरे कम कर दूंगा। बट भले ये प्रॉब्लम्स है, बट ये जो लेक्चर्स ले रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड प्लीज़ आप इसमें पार्टिसिपेट करें। ये आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। इसमें मैं मैक्सिमम आप टेक्स्ट, आप जहाँ बुक पढ़ेंगे, एक बुक पढ़ेंगे, मैंने 2-3 बुक पढ़ के, अच्छे बुक्स पढ़ के ये सारे लेक्चर्स प्रिपेयर करे हैं। तो सो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल एंड इनकरेज मी टू मेक मोर लेक्चर्स। मैं जानता हूँ कि अभी तक कोई भी प्रॉपर कमेंट नहीं आया, नहीं ना ही लाइक्स आया, तो दैट इज़, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइक के लिए पढ़ा रहा हूँ, बट ये है कि एक मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द लेक्चर्स। और मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाला हूँ, बशर्ते आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।